بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایمان اپنے نام کی طرح حیاتار تھی، اور یہی نہیں، خوبصورتی میں بھی اس کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ محلے کے لڑکے تو بھنوروں کی طرح اس کے گھر کے گرد منڈلاتے رہتے تھے۔ کئی لڑکیوں کی زبانی اس کے حسن کے چرچے پورے محلے میں پھیل چکے تھے، لیکن کبھی کسی نے اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھا تھا۔ گھر میں بڑی بہن ہونے کے ناطے وہ ذمہ دار بھی تھی اور محنتی بھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی یہ محنت ایک دن اس کے پلے پڑ جائے گی۔ ایک ایکسیڈنٹ میں باپ کی معذوری کی وجہ سے اسے گھر سے قدم باہر نکالنا ہی پڑے۔ 16 سالہ ایمان، جس نے کبھی اپنے آنگن کے علاوہ کہیں جھانک کر بھی نہیں دیکھا تھا، اب دربدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور تھی۔ 16 سال کی عمر میں جبکہ پڑھائی بھی کوئی خاص نہ ہو، بھلا آج کل کون نوکری دیتا ہے؟ مگر کہتے ہیں کہ جب لگن سچی ہو تو انسان کو اپنی منزل مل ہی جاتی ہے۔ ایمان کو بھی ماں کی دعاؤں سے اور اپنی کوششوں سے ایک فیکٹری میں کور سلائی کرنے کی نوکری مل گئی تھی۔ وہ دن بھر سلائی مشین پر جھکی رہتی اور پھر دن کے آخر میں 500 یا 700 لے کر اپنے گھر آ جاتی، جہاں اس کے بہن بھائی، ماں اور معذور باپ اس کے منتظر ہوتے تھے۔ ایمان گھر آتے ہی پیسے اپنی ماں کی ہتھیلی پر رکھ دیتی، اور یوں وہ اپنی محنت کے حق سے بھی دستبردار ہو جاتی تھی۔ محنت بھی وہ جس کے نشان اس کی گردن پر بھی پڑتے تھے۔ سخت گرمی میں بھی کبھی اس نے چادر سر سے نہیں اتاری تھی، اور مسلسل سکارف باندھنے کی وجہ سے اس کی گردن پر نشان پڑ جاتے، مگر اسے اپنی استانی صاحبہ کی وہ بات یاد آ جاتی کہ پردہ کرنے والی عورتوں کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکے گی۔ بس یہی ایک بات تھی جو سخت گرمی میں بھی اسے چادر لینے پر مجبور کر دیتی تھی۔ اس کا رجحان شروع سے ہی مذہبی تھا، مگر پھر دنیا اور روزگار کے چکروں میں وہ یہ سعادت کبھی حاصل نہیں کر سکی۔ زندگی کے دن یوں ہی گزرتے رہے، حتیٰ کہ 5 سالوں میں اس نے اچھی خاصی رقم کما لی تھی۔ بہن بھائی بھی اچھے اسکولوں میں پڑھنے لگے تھے۔ ابا کا علاج کرانے کے بعد سے ان کی معذوری کے اثرات بھی تقریباً ختم ہو گئے تھے۔ وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو چکے تھے، مگر 5 سال ویل چیئر پر اور چارپائی پر گزارنے کے باعث وہ خاصے کاہل ہو چکے تھے۔ انہیں بیٹی کی کمائی کا چسکا پڑ چکا تھا، اور ایک بار جب انسان آرام طلب ہو جائے تو وہ پھر محنت کاہے کو کرے۔ باپ نے بھی جب گھر کی ذمہ داری سے ہاتھ اٹھا لیے تو اس نے اپنے بھائیوں کی طرف امید کی نظر سے دیکھا۔ چھوٹے بھائی میں تو اس کی جان تھی۔ شاہزین کو وہ ہمیشہ سے ہی حافظ قرآن بنانا چاہتی تھی، سو اس نے اسے مدرسے میں داخل کروانے کی ٹھان لی، چاہے باپ جتنی مخالفت کرے، لیکن وہ یہ کام کر کے رہے گی۔ شاکر صاحب چاہتے تھے کہ بیٹے کو مکینک کی ورکشاپ میں بٹھا دیں تاکہ کچھ کام کرے اور 2-4 پیسے ہاتھ آئیں، لیکن ایمان جانتی تھی کہ اس نے دن رات محنت کی چکی میں پس کر اپنی عمر کا ایک قیمتی حصہ ضائع کر دیا تھا۔ اپنے بھائی کے ساتھ تو وہ ہرگز ایسا نہ ہونے دیتی۔ ایک دن ابا کی لاکھ ڈانٹ پھٹکار کے باوجود وہ 10 سالہ شاہزین کو لے کر مدرسے چلی گئی۔ اپنے اکلوتے بھائی کی دین اور دنیا دونوں ہی سنوارنا چاہتی تھی۔ شاہزین اس کی انگلی تھامے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے ساتھ بڑی معصومیت سے چل رہا تھا۔ اسے لے کر وہ مدرسے پہنچی۔ دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی اس کی ٹکر ایک نوجوان سے ہو گئی۔ زندگی میں پہلی بار اس نے مردانہ حسن کا اتنا مکمل نمونہ دیکھا تھا۔ نوجوان کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ بھی تھا، جو شاہزین ہی کی عمر کا ہوگا یا اس سے 1-2 سال بڑا ہوگا۔ غالباً وہ بھی اسی کی طرح اپنے چھوٹے بھائی کو مدرسے داخل کروانے لایا تھا۔ ساری عمر پردے میں رہنے کے باوجود اپنے سامنے کھڑے وجاہت کے اس شاہکار کو دیکھ کر وہ اپنی نگاہیں چپکانا بھول گئی تھی۔ یہی حال اس نوجوان کا بھی تھا جس نے گہری نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ وقت جیسے ایک لمحے کے لیے تھم گیا تھا۔ اس کی نگاہوں میں کئی سپنے آئے اور گزر گئے۔ مدرسے کے دروازے کے پاس کھڑے سیکیورٹی گارڈ نے ان کی محویت کو دیکھا تو ان کے آنے کا مقصد پوچھا۔ اس نے ہڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھا، چادر درست کی اور پھر گارڈ کو بتایا کہ وہ اپنے بھائی کو مدرسے میں داخل کروانے لائی ہے۔ گارڈ نے اس کا نام پتہ وغیرہ رجسٹر میں لکھا، نوجوان کا پتہ بھی لکھا اور انہیں اندر بھیج دیا۔ وہ دونوں ایک ساتھ ہی داخلہ کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر استقبالیہ پر بیٹھے آدمی نے انہیں یوں گھورا جیسے وہ دنیا کا 8واں عجوبہ ہوں۔ شاہزین کو مدرسے میں داخل کروا کر اس نے معمولی سی فیس بھری اور پھر گھر کی راہ لی۔ راستے میں وہ اللہ سے بھائی کی سلامتی کی دعائیں مانگتی رہی۔ دفعتاً اسے احساس ہوا کہ کوئی اس کا تعاقب کر رہا ہے۔ اس کا دل بے ترتیب انداز سے دھڑکنے لگا تھا۔ اسے تو پیچھے مڑ کر دیکھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ایک عجیب سا خوف تھا جو اس کے دل پر سوار تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی گھر کی طرف بڑھنے لگی، مگر وہ کیا جانتی تھی کہ تعاقب کرنے والا اس کے گھر تک آ جائے گا، بلکہ اس کا ارادہ ہی اس کے گھر کا پتہ دیکھنا تھا۔ اور پھر اگلے دن اس کی نگاہوں کے تیر سے گھائل فراز علی اپنے ماں باپ کے ساتھ اس کا ہاتھ مانگنے پہنچ گیا۔ اسے تو جیسے یقین نہ آیا کہ حسن کا دیوتا اس کے گھر چل کر اس کا رشتہ مانگنے آیا ہے۔
फराज अली अगरचे गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था, मगर उसका हुस्न और खुश लिबासी लगता था कि वो कोई शहज़ादा है। फराज अली के ख़ानदान से मिलकर उसकी माँ बहुत खुश हुई। खुश होती भी क्यों ना, घराना भी इंतहाई मुख्तसर सा था और माँ को अपनी बेटी की खुशियों के अलावा क्या चीज़ चाहिए होती है। मुबादा वो फराज अली का छोटा भाई शारिक ही था जो उस दिन उसके साथ मदरसे आया था। इस रिश्ते पर किसी को कोई एतराज़ नहीं था और ना ही होना चाहिए था, मगर बेटी की कमाई खाने वाले बाप को और निकम्मे भाइयों को भला कब एहसास था, कब फिक्र थी कि ईमान भी अपने घर की हो जाए। उनके रवैये यही बताते थे कि वो कभी भी ईमान की शादी करने पर राज़ी नहीं होंगे। और यूं घर का माहौल कशीदा होता गया। माँ, बेटों और शौहर के दरमियान दूरी की एक खलीज हाइल हो गई थी जिसे चाह कर भी कोई गिरा नहीं सकता था, और बिलाखिर इसका नतीजा वो निकला जिसने एक हंसते बसते घराने को उजाड़ दिया। मगर माँ भी अपनी बेटी को यूं नहीं छोड़ सकती थी। उसके ब्याहने की उम्र थी, सो माँ ने शौहर और बेटों की परवाह किए बिना बेटी को 2 जोड़ों में निकाह पढ़वाकर फराज अली के साथ रुखसत कर दिया। घर का आंगन सूना हो गया था। घर से कमाने वाली वाहिद हस्ती भी चली गई थी। घर में तो फाकों की नौबत आ गई थी, मगर माँ को इसकी परवाह नहीं थी। वो अपनी बेटी को ब्याह कर खुश थी। हाँ, मगर कभी कभी उसके नसीब के बारे में सोचकर उसे थोड़ी फिक्र होती थी, मगर वो अल्लाह से दुआएं मांगती कि उसकी बेटी का नसीब भी उसकी शक्ल सूरत की तरह, उसकी सीरत की तरह शानदार हो। शादी की रात रवायती शौहरों की तरह फराज अली ने मोहब्बत का इजहार तो ज़रूर किया, लेकिन साथ ही साथ ये भी जता दिया कि अपने माँ बाप और छोटे भाई शारिक के ख़िलाफ़ वो एक लफ्ज़ भी सुनना पसंद नहीं करेगा। आम लड़कियों के बरक्स ईमान को इस बात पर हरगिज़ कोई एतराज़ नहीं था। सास ससुर की खिदमत को तो वो अपनी सादत समझती थी, सो उसने भी ये बात अपने पल्लू से बांध ली और पहले दिन से ही खुद को सास ससुर की खिदमत में गुम कर लिया। क्योंकि घर में कोई दूसरी औरत थी नहीं, सो सारी जिम्मेदारियाँ उसी पर आन पड़ी थीं, मगर वो फिर भी खुश थी। अपनी उम्र में उसकी सही जगह शादी हो गई थी, मोहब्बत करने वाला शौहर मिल गया था, उसे और क्या चाहिए था। मगर जल्द ही उसे तन्हाई का एहसास काटने लगा। सास के गुण भी खुलने लगे, जो एक एक बात पर उसके कीड़े निकालती थी और फिर उसके किरदार पर भी शक करती थी। सास का ख्याल था कि नकाब और भुर्के वाली लड़कियां आम लड़कियों से भी ज़्यादा बदकिरदार होती हैं। उसका तो दिल छलनी छलनी हो जाता था। ईमान का बस नहीं चलता था कि वो अपनी पाकीज़गी के लिए अपना दिल काट कर उनके सामने रख दे। मगर कहते हैं कि कभी कभी दुनिया बेरहम हो जाती है। खुदा इंसान के गुनाहों को माफ़ भी कर दे तो ये दुनिया नहीं भूलती। और फिर ईमान ने तो कोई गुनाह भी नहीं किया था। उसकी सास तो बिला वजह ही उसे रोकती टोकती थी, उस पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ती थी। और फिर उन्हें इस बात का भी इल्म था कि मैके में बाप और भाई ईमान से सख्त नाराज़ हैं। उसने अपनी पसंद की, अपनी माँ की मर्ज़ी से शादी की थी। इस बात ने तो सबीहा बेगम को शेर बना दिया था। वो अपने जुल्म की हर हद ईमान पर पूरी कर देती थी। ईमान अपनी ज़ुबान से उफ तक नहीं कहती थी। सिवाय अल्लाह से दुआ करने के उसने कभी किसी के जुल्म का कोई जवाब नहीं दिया था। लेकिन आखिर वो भी एक इंसान थी। एक दिन उसे अपने घर वालों की याद सख्त सताई। सास ने उस दिन जुल्म की हद कर दी थी। वो अपने भाई से मिलने मदरसे चली गई। घर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। बाप और भाई उसकी जान के दर पे थे। शाहजैन से मिलने वो मदरसे पहुंची। ये जुमे का दिन था। उसे उम्मीद थी कि वो शाहजैन को मदरसे से घर ले आएगी, मगर ये भी डर था कि कहीं जुमे के दिन छुट्टी के बायस वो घर ही न चला गया हो। मदरसे के इस्तकबालिया पर किसी को ना पाकर वो खुद ही राहदारी में चली गई। मदरसा बच्चों से खाली था। शायद सभी अपने अपने घरों को चले गए थे। उसका दिल डूबने सा लगा था कि उसे किसी की घुटी घुटी सिसकियाँ सुनाई दी। मारे तजस्सुस के वो आगे बढ़ी। सिसकियों की आवाज़ खिड़की के पास से आ रही थी। वो शिकस्ता कदमों से खिड़की के पास गई तो अंदर का मंजर देखकर हैरान रह गई। मदरसे के बेरहम और सफाक उस्ताद ने उसके मासूम से भाई पर जुल्म की इंतहा कर दी थी। उस लम्हे उसे लगा कि ज़मीन पर सबसे मजलूम ख़ानदान शायद उसी का था, जिन पर हर कोई जुल्म और सितम करता था, जिनका ना कोई पूछने वाला था और ना ही कोई सहारा था। मौलवी साहब जुनूनी अंदाज में शाहजैन को तशद्दुद का निशाना बना रहे थे। ये देखकर वो किसी जख्मी शेरनी की तरह आगे बढ़ी और शाहजैन को बाहों में भर लिया। मौलवी साहब ने करख्त आवाज़ में उसे वहाँ से निकल जाने का कहा, मगर वो अपने भाई को लेकर ही टली थी। मौलवी साहब ने उसे गुस्ताख कहकर उसे मदरसे से खारिज करने की धमकी दी। उसने उसकी परवाह न की और भाई को लेकर तड़पती हुई मदरसे से बाहर आ गई। उसे कब अंदाज़ा था कि उसके भाई का ये हशर होगा। वो तो अल्लाह का कलाम सिखाने उसे यहाँ लाई थी। उसे क्या मालूम था कि इन लोगों के दिलों में ज़रा भी रहम नहीं है।
उसने शाहज़ैन को प्यार किया, समझा बुझा कर उसे घर भेज दिया। अब वो वक्फे वक्फे से उसकी खबर लेती रहती थी, मगर जब से मदरसे का पुरतशद्दुद माहौल देखा था, उसका दिल शारिक के लिए भी बेचैन रहता था। वो भी उसी मदरसे का तालिबे इल्म था और ऐन मुमकिन था कि उस पर भी उसी किस्म का तशद्दुद होता हो। क्योंकि उसने अपने 11 साला देवर को मौलवी साहब के हाथों पिटते नहीं देखा था, मगर उसका अजीबोगरीब रवैया बताता था कि वो ज़हनी तौर पर बहुत मायूस और परेशान है, अक्सर उलझा उलझा नजर आता था। ईमान को देखता तो घबराकर अपनी निगाहें फेर लेता। उसका रवैया देखकर ईमान समझ जाती कि ज़रूर वो किसी परेशानी में मुब्तला है, मगर किससे कहता। बड़ा भाई कारोबार के सिलसिले में बाहर रहता, रोजगार कभी मिलता और कभी ना मिलता। सास ससुर को तो बुढ़ापे की बीमारी ने आ लिया था और भाभी उसके लिए एक अजनबी थी। जिंदगी में बहुत कम ही उसका सामना औरतों से हुआ था, सो उसका ये रवैया कोई हैरत की बात नहीं थी। ईमान ने अपने देवर की ये हालत देखी तो शौहर से मिन्नत की कि उसे मदरसे से निकाल ले, वरना वो जहनी मरीज बन जाएगा। फराज अली ने पहले तो बीवी की बात न मानी, फिर एक दिन आजमाइश करने के लिए वो चुपके से मदरसे गया। वहाँ का माहौल देखा तो उसे बीवी की बात पर यकीन हो गया। यूं भी घर की जिम्मेदारियां बढ़ने लगी थी। फराज अली रोजगार के सिलसिले में दुबई जाना चाहता था। कितने अरसे से उसकी ख्वाहिश थी, वीज़ा भी निकल आया था, मगर घर में किसी के ना होने की वजह से वो बाहर भी नहीं जाना चाहता था। मगर अब फराज अली का छोटा भाई शारिक काफ़ी बड़ा हो गया था, सो उसने एक तीर से दो शिकार करने का सोचा। बीवी की बात का मान भी रख लिया और घर की जिम्मेदारियां भी शारिक को सौंप दी। यूं उसे बाहर जाने का सुनहरी मौका मिल गया, जिसका वो 5 सालों से इंतज़ार कर रहा था। शौहर के दुबई जाने पर अगरचे ईमान दिल से दुखी थी, मगर वो भी इस घर की बेहतरी चाहती थी, और सबसे बढ़कर अपने 2 बच्चों की, जो अब उसकी गोद में आ चुके थे, और उनकी नन्ही नन्ही ख्वाहिशें हसरतें पूरी करना अब ईमान के बस की बात नहीं रही थी। घर के महदूद से खर्चे में वो अपने बच्चों की इतनी सारी फरमाइशें कैसे पूरी करती। उसने भी दिल पर पत्थर रखकर शौहर को खुदा हाफिज कह दिया। उस दिन उसे लगा था कि वो अचानक बहुत तन्हा हो गई है, मगर बच्चों की खातिर और अपने शौहर की खातिर ये सब भी बर्दाश्त करना पड़ा। और फिर उसे शारिक का भी सहारा था, मगर वो उसका सहारा तो क्या बनता। बेचारा खुद डरा सहमा रहता था, अक्सर रात को उठकर चिल्लाने लगता। ईमान जानती थी कि मदरसे के पुरतशद्दुद माहौल ने उसे ऐसा बना दिया था। वो प्यार मोहब्बत से उसका दिल जीतना चाहती थी, ताकि वो उस पर इन्हिसार करे, उसे अपने दिल की बातें बताए और एक नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ दोबारा आ जाए। उस दिन के बाद से उसने शारिक पर ख़ास तवज्जो देना शुरू कर दी। रात को सोने से पहले वो शारिक के कमरे में ज़रूर जाती थी। अक्सर वो उसे कोई न कोई कहानी सुनाकर सुला देती और फिर खुद अपने बच्चों के पास आकर सो जाती। फराज अली को गए तकरीबन 2 साल का अरसा गुजर चुका था। इस दौरान उसकी सास का रवैया यूं ही बरकरार रहा। देवर की अजीबोगरीब हरकतें थोड़ी कम हो गई थीं, मगर अब वो अक्सर घर के बाहर रहने लगा था। रात को देर से आना उसका मामूल बन चुका था। उसने सास ससुर से लाख कहा कि अपने बच्चे पर नजर रखें, मगर वो तो यूं ला ताल्लुक बने हुए थे जैसे वो उनका बेटा ही ना हो। कभी कभी पोतों को सबीहा बेगम गोद में उठा लेती थी, मगर उनका रवैया उखड़ा उखड़ा ही रहता था। और फिर एक दिन मामूली सी बात का बहाना बनाकर उन्होंने ईमान को घर से बाहर निकाल दिया। ईमान लाख रोती चिल्लाती रही, मगर उसकी किसी ने ना सुनी। वो भी घर के दरवाजे पर बैठी रह गई। बारिश जोरों की थी, वो इस बारिश में कहाँ जाती। उसे अपने बच्चे के रोने की मुसलसल आवाज़ आ रही थी, मगर उसकी जालिम सास ने ना ही दरवाज़ा खोला, ना ही उसे अंदर आने दिया। रात का न जाने कौन सा पहर था कि किसी ने दरवाज़ा हल्का सा खोल दिया। उसने खुदा का शुक्र अदा किया कि दरवाज़ा खुला। वो भागी भागी अपने बेटों के पास पहुंचना चाहती थी कि किसी ने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। वो हैरान थी कि घर के अंदर कौन आ गया है, मगर शायद वो ये भूल चुकी थी कि उसका देवर, जिसे वो एक बच्चा समझती थी, अब एक मुकम्मल मर्द बन गया था, और उसकी नज़रों का जाविया न जाने कब से बदल गया था, जिसे उसने नासमझी, गफलत या फिर मसरूफियत की बिना पर कभी तवज्जो ही नहीं दी थी। इतना सोचने का उसे वक्त ही कब मिला था। उसकी ज़िंदगी तो एक आंधी तूफान की तरह की थी। देवर की जुर्रत पर वो हैरान रह गई, मगर उससे ज़्यादा हैरत उसे उसकी आंखों में अपने लिए बेशर्मी देखकर हुई थी। और फिर आज तक वो पछताती है कि काश उस रात दरवाज़ा न खुलता तो वो कभी नाजायज़ औलाद की माँ न बनती। इस वाक़े को 1 ही महीना गुजरा था कि उसे अपने अंदर तब्दीलियाँ महसूस हुई। वो तो कांप कर रह गई। उसका दिल दहलने लगा था। खुदाया, अब कहाँ जाऊँ? शौहर तो साल से घर नहीं आया। सास तो यही कहेगी कि घर से बाहर निकाला था तो न जाने कहाँ मुँह काला करके आई है। 2 बच्चों की माँ होते हुए उस पर इस तरह का इल्ज़ाम। उसका दिल चाहा कि ज़मीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। किस कदर मजलूम और बेसहारा हो गई थी। ना ही बाप का सहारा, ना ही भाइयों की मदद।
उसे लगा था कि ऊपर आसमान है और नीचे ज़मीन पर वो तन्हा खड़ी है। उसने अपने रब को पुकारा जो हमेशा उसकी पुकार का जवाब देता था, और फिर इस बार भी अल्लाह ने उसकी नाकर्दा खता का पर्दा रख लिया। सास की बीमारी की वजह से शौहर को फ़ौरन ही वापस पाकिस्तान आना पड़ा। उसकी तो जान में जान आ गई। अपने शौहर को वो देवर की सब हकीकत बताना चाहती थी, मगर न जाने क्या सोचकर चुप रही। शायद इसलिए कि वो उसकी बात पर यकीन ही नहीं करता था, और अब तो वो ये चाहती भी नहीं थी कि कोई उसकी इस बात पर यकीन करे कि वो अपने देवर के बच्चे की माँ बनने वाली है। अपनी मुअल्लिमा को अपनी कहानी सुनाकर वो बुरी तरह रो पड़ी। वो इस बच्चे से छुटकारा पाना चाहती थी जो उसकी औलाद ही नहीं था और उसका गुनाह भी नहीं था, वो बेकसूर थी। ऐसे में उसका दिल मरने का चाह रहा था, लेकिन वो मर नहीं सकती थी कि खुदकुशी भी हराम ठहराई गई है। अपना घर भी कैसे बर्बाद करती। उस्तानी साहिबा ने उसे अल्लाह से माफ़ी तलब करने का और कफ़ारा अदा करने का कहा, हालांकि उसका कोई कसूर नहीं था। शायद कसूर हमारे माशरे का, हमारी रिवायतों का था, जिन्होंने एक औरत को इस कदर मजबूर लाचार बना दिया कि वो अपनी इज्जत तक की हिफाजत नहीं कर सकती। घर में देवर और जेठ के नाम पर मौजूद गैर महरम रिश्ते औरत की पाकदामनी के लिए एक खतरा है, मगर कौन तवज्जो देता है, कौन परवाह करता है, क्योंकि इन रिश्तों पर शक करना तो गोया गुनाह समझा जाता है, लेकिन जो असल गुनाह है उसकी तरफ किसी की नज़र ही नहीं। खुदा ऐसी बेशर्मियों से हम सब को बचाए और हमारे मुआशरे को इस्लाम के मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।